मोदी सरकार के एफसीआरए बिल से डरी कांग्रेस, विरोध में उतरा विपक्ष। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस एफसीआरए बिल पास नहीं करने देगी। केसी वेणुगोपाल का बयान, एफसीआरए विधेयक का मौजूदा स्वरूप स्वीकार्य नहीं। गिरिराज सिंह का कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब, ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और मोदी सरकार एफसीआरए से जुड़ा बिल संसद में पेश कर सकती है, जिसको लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार एफसीआरए में बदलाव को लेकर जो है इसका विरोध कर रही है। वो ये कह रही है कि दरअसल हम किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। इस बिल को पहले से ही विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओ पर स्ट्राइक कहा जा रहा है, जिसे लेकर काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध में उतरे हुए हैं। अब केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के इस एफसीआरए बिल को किसी भी सूरत में सदन में पेश होने नहीं देंगे, सदन से पास नहीं होने देंगे। ये बड़ा बयान है केसी वेणुगोपाल का। उनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी को एफसीआरए बिल पास नहीं करने देगी और एफसीआरए बिल का जो मौजूदा स्वरूप है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। ये बात जो है कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, खास तौर पर केसी वेणुगोपाल, जरा सुनिए। CRA, let them bring the FCRA bill, then we will show them what is our attitude. That I have spoken about that already. And then, is there any chance of special session? We are hearing also. We don't know nothing. We don't know that thing. What is the purpose of the special session? Parisiman bill. Therefore, I think the person who has to deal this pilot the delimitation bill, he is not even coming to the parliament. He is hiding somewhere else. In this building, he is there. He is hiding here or somewhere. He is not even brave enough to come to the parliament. He is in the building, sir. Building is there. Somebody is telling building is there. Parliament is not, the minister's job is not sitting in this room. His job is to come to the parliament to explain. Who ordered that firing? Who ordered that firing? Today also Rahul Gandhi spoken about that. Country need to know who ordered that firing. Who ordered for pellet gun firing? He is not in a position to answer it because entire his mind is in guilty now. Who ordered for AK-47 in Bihar? Well, these answers. DM, sir, DM. Okay, this is the problem. This is the problem. You will give answer for government. You will not take opposition views. The job of the journalist is all the times not like that. Whenever a question raised by opposition, then you will ask the government that question. Instead of that, what you people are doing, you are asking the question for government to ask. Our stand is very clear on FCRA. Our stand is very clear on delimitation also. We have repeatedly stated, we have repeatedly said why we are against it. Regarding FCRA, it is killing of NGOs who are doing good charity to the poor. It is killing of those minority institutions, organizations who are doing service to the country. And regarding delimitation, the intention is very clear. They want to cut the constituencies and create constituencies the way it suits them. So we will continue to vehemently oppose both FCRA and delimitation. तो आपने सुना, उनका कहना है कि विपक्ष के नेता ने अपनी चिंताएं जोरदार ढंग से जाहिर की हैं और पार्टी विपक्ष का रुख भी बिल्कुल साफ है। वो एफसीआरए बिल को उनके पुराने स्वरूप में
नहीं ला सकते हैं, ये बातें उनकी तरफ से कही गई है। यानी इस तरीके से कांग्रेस पार्टी विदेशी फंडिंग से जुड़े इस बिल का लगातार विरोध कर रही है। और इसको लेकर जब बीजेपी के नेता सांसद गिरिराज सिंह से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, देश की सुरक्षा के पक्ष में है। जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को जो उस पैसे पर पलते हैं, ये साफ तौर पर कहा है। क्या कहा है गिरिराज सिंह ने, सुनिए। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। ये बिल जो बाहर से पैसे, नाजायज पैसे लाके भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सोरोज जैसे लोगों के पैसे, चाइना से आ रहे पैसे, ये पैसे उनके पैसे हैं, इसलिए मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते हैं उनको। बता दें कि एफसीआरए बिल को लेकर अब अमेरिकी सांसद भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रहे हैं और इसे ईसाइयों के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी इस बिल में नहीं है। और असल में इस बिल के जरिए विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर अब सरकार की सीधी नजर होगी। इस बिल के तहत केंद्र सरकार विदेशी चंदा पाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के लिए नियमों को और कड़ा करने जा रही है। इसके लिए विदेशी अंशदान नियमन कानून यानी एफसीआरए में संशोधन का बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये लगातार अटकलें चल रही हैं। सरकार से जुड़े सांसदों और तमाम सूत्रों का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह बदलाव जरूरी है। हालांकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है क्योंकि उनका मानना यह है कि इससे एनजीओ के काम करने की आजादी पर असर पड़ सकता है। फिर भी सरकार को भरोसा है कि सदन में यह बिल आएगा तो आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन नए बिल में प्रावधानों को आसान भाषा में अगर समझा जाए तो नंबर 1, नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव नई संस्था बनाने का है जिसे नामित प्राधिकरण कहा जाएगा। दूसरा, अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, खुद सरेंडर करती है या रिन्यू नहीं होता है तो उसका विदेशी फंड और उससे बनी संपत्ति इसी प्राधिकरण के पास चली जाएगी। तीसरा, सरकार चाहे तो यह संपत्ति किसी विभाग को दे सकती है या बेच सकती है और बिक्री का पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा। चौथा, रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म होने पर वो अपने आप रद्द माना जाएगा। पांचवा, विदेशी फंड कितने समय तक रखा और खर्च किया जा सकता है, इसकी समय सीमा भी तय होगी। छठा, सस्पेंशन के दौरान संस्था अपनी संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। सातवां, एफसीआरए मामलों में जांच अब सरकार की इजाजत के बिना शुरू नहीं होगी। आठवां, सजा को घटाकर 5 साल से 1 साल कर दिया गया है। और वहीं पर 9वां नियम यह है कि नियम तोड़ने पर डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। और आखिरी, संस्था बंद होने या निष्क्रिय होने पर उसकी संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी। तो ये सारे नियम जो है उसमें हैं। यही वजह है कि लगातार जो है विरोध किया जा रहा है, ये कहकर कि ये जो है एनजीओज के खिलाफ है, ये मिशनरियों के खिलाफ है जो कि फंड जिन्हें आता है और जो सोशल वर्क करते हैं, ये सारी बातें उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनके जो भी फंड उन्हें मिल रहा है उस पर सरकार निगरानी बनाए रखी जाना चाहती है। ये सारी बातें कांग्रेसियों की तरफ से भी की जा रही है, पूरा विपक्ष कर रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि देश की सुरक्षा के लिए, निष्पक्षता लाने के लिए और देश में अवैध तरीके से ये विदेशी फंड ना हो, किसी अवैध कार्य के लिए ना हो, ये कहीं ना कहीं इस चीज को रोकने के लिए ये बिल जरूरी है। इसमें कानून में संशोधन जरूरी है, इसलिए ये एफसीआरए संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही है और इस तरीके का बदलाव होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि कितना कामयाब जो है कांग्रेस इसमें होती हुई दिखती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या यह बिल पास होना चाहिए या नहीं, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।